So welcome students. In last lecture we were learning about the mathematical methods. So in last class we were discussing about scalar quantities and vector quantities. So what is basically scalar quantities? The physical quantities which have only magnitude is called as scalar quantities, and the physical quantity which have magnitude as well as direction, that is called vector quantities. ये हमने डिस्कस किया था. उसके बाद हमने देखा था कि जो इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, द वेक्टर्स विच हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड इक्वल वेक्टर. व्हाट इज अपोजिट वेक्टर? द वेक्टर विच इज हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड अपोजिट वेक्टर्स और नेगेटिव वेक्टर. इसके बारे में हमने देखा था. नल वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, ये सब बेसिक कंसेप्ट्स हमने देखे थे. हाउ टू मेजर द एंगल बिटवीन वेक्टर, इसके बारे में भी हमने लास्ट के लेक्चर में डिस्कस किया था. सो इन टुडेज क्लास वी विल सी सम बेसिक न्यूमेरिकल्स विच आर रिलेटेड टू द वेक्टर्स. जो वेक्टर का एडिशन किस तरह से करते हैं, वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन किस तरह से मेंशन करेंगे हम, और जो यूनिट वेक्टर से रिलेटेड जो कंसेप्ट है वो हम आज देखेंगे. सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट ऑल दिस न्यूमेरिकल्स, first we have to understand how to find the magnitude of the given vector. See here, if the vector is given like vector a, that is axi plus ayj plus azk. So in this form, if the vector is given, at that time we know that here is I cap, j cap and k cap. इसके बारे में हमने डिस्कस किया था. In case of Cartesian coordinate system, we are taking, if the for x-axis we are using the I component, for y-axis j components, and for the z-axis k components were there. So here if we have to find the magnitude, so first we will see how to find the magnitude. Magnitude किस तरह से find करते हैं ये आज हम अभी पहले देखेंगे. So the magnitude of vector A. So the magnitude of vector A is basically given by A. वेक्टर A का मैग्नीट्यूड हम A से डिनोट करेंगे और O होगा रूट में ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर. सो इन दिस फॉर्म वी हैव टू राइट द मैग्नीट्यूड. सो इस तरह से हम मैग्नीट्यूड लिखते हैं. ये जो वेक्टर A है इसको आप मॉड साइन में, ये जो साइन है इसे हम मॉड साइन कहते हैं. मॉड साइन में जब हम लिखेंगे वेक्टर को तो इसे भी आप मैग्नीट्यूड कह सकते हैं. सो बेसिकली द गिवन वेक्टर इज वेक्टर A इज इक्वल टू axi प्लस ayj प्लस azk. हियर द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A इज गिवन बाय A, which is equal to root of ax square plus ay square plus az square. So this magnitude can be shown by the mod sign. ये जो mod में आप वेक्टर को लिखेंगे तो उसे आप मैग्नीट्यूड कह सकते हैं. So this is how we are going to find the magnitude of any vector. Now let's take an example about it. See here. Let's write an vector p. Okay, so this vector p is equal to 2i plus 2j plus k. So here you can see this vector is in the form of like this, pxi plus pyj plus pzk. So now you can write the magnitude as by p. जब यहाँ पे एरो होगा तो ये वेक्टर होगा. जब आप सिर्फ p लिखेंगे so that will be the magnitude of vector p. So this will be px square plus py square plus pz square. Here we have to compare the values. क्या है वैल्यू? px की वैल्यू है 2, py की वैल्यू है 2 और pz की वैल्यू है 1. k के साथ यहाँ पे 1 होता है. तो बेसिकली
we have to write 2 square plus 2 square plus 1 square, and this will be square root of 4 plus 4 plus 1, square root of 9, this will be 3. So in this way we are going to find the magnitude of the given vector. So ये हमने डिस्कस किया मैग्नीट्यूड हम किस तरह से फाइंड करेंगे. अभी हम जो यूनिट वेक्टर के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, जो ऑलरेडी वी नो हाउ टू फाइंड द यूनिट वेक्टर एंड ऑल दिस थिंग्स. So in case of unit vector, let's first we have to take the example. See, basically unit vector क्या होता है? The vector which is having, let's consider u is the unit vector here. The vector which is having unit magnitude in given direction, it is given by vector p divided by p. यहाँ पे vector p है, divided by आप p करेंगे, यानी गिवन वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको यूनिट वेक्टर मिलता है. क्या मिलता है? यूनिट वेक्टर. ओके, सो इन दिस केस लेट्स टेक द एग्जांपल. इफ द गिवन वेक्टर इज वेक्टर p is equal to 2i plus 2j plus k. So here we have to find the unit vector. So unit vector u will be, वेक्टर p का वैल्यू क्या है? पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद वेक्टर p का जो वैल्यू है वो लिखेंगे 2i प्लस 2j प्लस k डिवाइडेड बाय, अभी हमने फाइंड किया था मैग्नीट्यूड ऑफ p, वो हमें मिला था 3. सो हियर यू कैन राइट दिस इज द आंसर, और दिस आंसर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 2/3i प्लस 2/3 प्लस 1/3 k, i j k, ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं. सो दिस इज बेसिकली द यूनिट वेक्टर विच वी फाइंड बाय यूजिंग द सिंपल फॉर्मूला ऑफ वेक्टर p डिवाइडेड बाय p. नाउ फ्रॉम some book we will take some problems related to the different operations related to the vector. आज के लेक्चर में हम सिंपल जो ऑपरेशंस है वेक्टर के उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं. सो लेट्स सी सम एग्जांपल्स. सी show that vector a is equal to I minus j upon root 2 is a unit vector. तो ये जो वेक्टर है इसे हमें यूनिट वेक्टर है ये प्रूव करना है. जो दिया हुआ वेक्टर है उसे हमें प्रूव करना है कि ये वेक्टर यूनिट वेक्टर है. सो बेसिकली द गिवन वेक्टर इज वेक्टर a is equal to I minus j upon square root of 2. So this vector is basically in the form of I upon root 2 minus j upon root 2. ये जो वेक्टर का जो इक्वेशन है उसे हम इस तरह से स्प्लिट करके लिख सकते हैं. So basically what is the formula for the unit vector? We have to first take the square root of this. So here we have to take, show that vector a I minus j upon square root of 2 is a unit vector. तो हम क्या करेंगे, पहले इस वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर है ये किस तरह से फाइंड करेंगे. हमें क्या करना पड़ेगा, जो वेक्टर है ओके उसका पहले हमें मैग्नीट्यूड चेक करना पड़ेगा. इफ मैग्नीट्यूड इज 1 देन वी कैन से हियर. सो हियर यू कैन राइट a is equal to square root of 1 by root 2 square plus minus 1 by root 2 square. So if magnitude is 1 then I can say that this vector is a unit vector. So here you can write 1 by 2 plus 1 by 2. So this is 1. So the given vector is having the magnitude as 1. So therefore we can say that the given vector is unit vector. So इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 आया है तो इसलिए हम इसे यूनिट वेक्टर यहाँ पे कह सकते हैं.
So let's see next example. So these are the basic examples which are related to the some operations related to the vector. Now they are asking us find the magnitude. Next problem. Okay. Next example, find the magnitude of vector A, that is 3i plus 2j minus 6k, and unit vector in the direction of vector A. So here vector A is 3i plus 2j minus 6k. So first we have to find the magnitude. So the magnitude will be A is equal to square root of 3 square plus 2 square plus minus 6 square. तो यहाँ पे हम जब मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं तो ये मैग्नीट्यूड हम इस तरह से निकालेंगे. A इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 4 प्लस 36 एंड इसका जो एडिशन आएगा, सी ये माइनस है, माइनस का भी स्क्वायर यहाँ पे प्लस 36 प्लस 4 40 प्लस 9 दैट विल बी 49. सो इसका जब आप स्क्वायर रूट निकालेंगे सो दैट विल बी 7. तो जो मैग्नीट्यूड का वैल्यू आया है वो 7 आया है. ए से हमने मैग्नीट्यूड निकाला. सिर्फ आगे हमें क्या करना है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए. सो एंड वी हैव टू फाइंड द यूनिट वेक्टर. सो बेसिकली हियर आई एम शोइंग यूनिट वेक्टर बाय ए. You can show it by any letter, no problem. So this will be vector A divided by A. So here we have to write first vector, that is 3i plus 2j minus 6k divided by 7. So this you can write as 3 by 7i plus 2 by 7j minus 6 by 7k. So this is how we find the magnitude of the given vector. सॉरी, दिस इज हाउ वी फाइंड द यूनिट वेक्टर. ये मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर किस तरह से हमें फाइंड करने हैं इसके बारे में ये एग्जाम्पल था. सो लेट्स सी नेक्स्ट एग्जाम्पल. Just a minute. So in next case there is a vector which is given. See here, vector P is equal to 2i plus 3j, 2i plus 3j minus k, and vector Q is equal to 5i minus 2j plus 2k. Okay, so we have to find vector P plus vector Q. Find vector P plus vector Q. And we have to find next one, that is 3p minus 2q. तो ये आपको यहाँ पे फाइंड करना है. तो बहुत ही बेसिक ऑपरेशंस है ये, तो आपको इसे अच्छी तरह से यहाँ पे फाइंड करना है. सो सी हियर. So how we find this type of example? Number 1, we have to find vector p plus vector q. So what is the vector p?
दैट इज 2i प्लस 3j माइनस के प्लस वेक्टर q का जो वैल्यू है वो है 5i माइनस 2j प्लस 2k and here just we have to take the similar quantities I, j, j, k, k. So it will be 2i plus 5i here plus 3j minus 2j minus k plus 2k. ओके मैंने क्या किया यहाँ पे, जो 2i है ये 5i इसे लिया, बाद में 3j माइनस 2j, उसके बाद माइनस k प्लस 2k ये हमने ऐड किया है. सो दिस विल बी 7i प्लस j प्लस k. ओके सो दिस विल बी आवर वेक्टर p प्लस वेक्टर q. ओके तो क्या मिला है हमें आंसर, ओके 2i plus 3j minus k, 2i minus 5j plus 2k. So in this way you can see here this is 2i plus 3j minus k, 2i plus 3j minus k, and next one is here 5i minus 2j plus 2k, 5i minus 2j plus 2k. Just we have to take 2i, 5i, 3j minus 2j minus k plus 2k. सो ये बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल था. 7i प्लस j, ये 3j माइनस j होगा, ये माइनस k प्लस 2k, यहाँ पे प्लस k होगा. ओके सो इन नेक्स्ट केस हियर यू कैन सी द गिवन इज 3p माइनस 2q. सो इन सच अ केस यू हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई द गिवन वेक्टर बाय 3. फर्स्ट वी हैव टू मल्टीप्लाई वेक्टर p विथ 3. सो दिस विल बी 2i प्लस 3j माइनस के माइनस ये जो q का जो वैल्यू है वो है 5i माइनस 2j, 5i माइनस 2j प्लस 2k. सो नाउ यू कैन राइट 6i प्लस 9j माइनस 3k, दिस विल बी माइनस 10i प्लस 4j माइनस 2k. ओके सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कैलकुलेशन बहुत ही इजी है, सिर्फ आपको अच्छी तरह से ये वेक्टर का वैल्यू यहाँ पे पुट करना है. 2i प्लस 3j माइनस k, ओके 5i माइनस 2j प्लस 2k. नाउ वी आर मल्टीप्लाइंग 3 2 6, 3 3 9, 3 1 3. सो दिस विल बी 6i 9j minus 3k. This will be, here is a minus sign, so we have to take the values carefully. So this will be minus 2 into 5 minus 10i minus into minus, that will be plus. So this will be 4j and this will be minus, sorry here 2 into 2, that we have to take 4k. Okay so this is how we do the mistake. So this will be 2 into 2, that will be minus 4. Now just take the I, j, j value, k, k value near. So you can take here 6i minus 10i, then plus 9j plus 4j, and here is a minus 3k and here is a minus 4k. So this is how you can now do the next step. Okay तो नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा जो फाइनली 6i माइनस 10i, दैट विल बी माइनस 4i. ओके 9j प्लस 4j, दैट इज 13j, एंड माइनस 3k माइनस 4k माइनस 7k. Once again we will see here 3 2 6, 3 9, 3 1 3, minus 10i plus 4j minus 4k. So this will be 6i minus 10i, that will be minus 4i. यहाँ पे 9j है plus 4j, 13j होगा minus 3k minus 4k, that will be minus 7k. So this is our final answer. So it's a very easy problem. This you can do with your own. Okay. तो ये सिंपल जो ऑपरेशंस है रिलेटेड टू द वेक्टर्स, दिस वी आर डिस्कसिंग. सी हियर नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, जो आपका महाराष्ट्र टेक्स्ट बुक में से भी कुछ प्रॉब्लम हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं. तो यहाँ पे दिया है गिवन, के 1 सेकंड, गिवन वेक्टर v1 is equal to
3i plus 4j plus k, 3i plus 4j plus k, and vector v2 is equal to I minus j minus k. Determine the magnitude of वेक्टर v1 प्लस वेक्टर v2, v1 प्लस v2. सो बहुत ही ईजी है. आपको यहाँ पे क्या करना है, दो वेक्टर को फर्स्ट ऐड करना है, v1 प्लस v2 को. ओके, दैट इज 3i प्लस 4j प्लस k, एंड देन देर इज अ प्लस i माइनस j माइनस k. नाउ यू कैन सी 3i प्लस i. ओके, ये क्या हो जाएगा 4i, 4j माइनस j ये हो जाएगा 3j, प्लस k और माइनस k ये हो जाएगा 0. सो वी हैव 4i प्लस 3j. ओके, सो दिस वैल्यू वी हैव v1 प्लस v2 के लिए ये वैल्यू है. We have to actually determine the magnitude of v1 v2. So this we can write v1 plus v2. मॉड में जब हम लिखेंगे ये हो जाएगा हमारा मैग्नीट्यूड. ये है मैग्नीट्यूड का वैल्यू. तो उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर. यहाँ पे k नहीं है तो हम सिर्फ 4 और 3 के बारे में सोचेंगे. तो यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर 16 एंड 9. तो दिस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 25, and finally we have an answer that is 5. So this is very easy problem related to your basic concepts of magnitude and unit vector. So thank you for watching the video, and in next video we will see how to find the triangle of vector addition problem. So उसके जो solutions है वो किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे. जो आने वाले लेक्चर्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये सब आज का बहुत ही बेसिक कंसेप्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थे. नेक्स्ट लेक्चर है वो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा. सो स्टे ट्यून्ड विद अवर चैनल एंड यू कैन शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स. सो थैंक यू वेरी मच.